سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی صاحبزادہ طارق محمود الحسن کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام مشرقی لندن میں کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ طارق محمود الحسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ عمران خان چاہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائے۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ عشائیہ کا اہتمام سماجی اور سیاسی شخصیت جمیل شاہ کی جانب سے ان کی رہائش گاہ پر کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اپنے خطاب میں طارق محمود الحسن نے کہا کہ عمران خان چاہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں، اس لیے ان کے دور حکومت میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشل شعبہ بنایا گیا تھا، جہاں پر ان کے تمام مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جاتے تھے۔ سید طارق محمود الحسن کا مزید کہنا تھا کہ ایک سازش کے تحت عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، لیکن آئندہ آنے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ واپس اقتدار میں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا ہم چونکہ محب وطن لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے، ریمیٹنس کی وجہ سے ہمارا ملک چلتا ہے، اس میں ہم کوئی قدغن نہیں لگاتے کبھی بھی، اور ہم نے کبھی اپنے دوستوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ فارن ریمیٹنس نہ بجوائیں۔ جو لوگ ہیں وہ تھوڑی سی بجوا رہے ہیں، لیکن فارن ریمیٹنس کا جو ان کا دعویٰ ہے وہ غلط ہے۔ فارن ریمیٹنس پہلے سے نیچے آئی ہیں، کیونکہ وہاں سٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی جب نہیں ہوتی تو فارن ریمیٹنسز لوگ نہیں بجواتے۔ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اس میں، تاکہ جو منتخب حکومت آئے اس پہ لوگ اعتماد کریں، اور فارن ریمیٹنس نہ صرف $30 بلین بلکہ یہ $100 بلین تک ہونی چاہیے۔ طارق محمود الحسن کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں غیر مستحکم حکومت ہے، اس لیے کوئی بھی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں زر مبادلہ بھیجنے اور سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ یہ یقین کر لیں اس وقت ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ بدترین ہو چکے ہیں، ملک کے حالات انتہائی بدترین ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں اکانومی جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے آپ کی ہمیشہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے۔ جب کسی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وہاں پر آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہاں کی سٹاک ایکسچینج بہتر ہوگی، وہاں کے ادارے بہتر کام کریں گے، وہاں سے فورن ریمیٹنس آئیں گی یا فورن لوگ آ کے اپنی انویسٹمنٹ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے اہم عہدیدار عمران خلیل نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں بسنے والے اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان جب بھی کال دیں گے وہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ جی انشاءاللہ تعالی اوورسیز اب بھی اسی طرح خان صاحب کے ساتھ کھڑے، اور پاکستان کی عوام بھی اسی طرح ساتھ کھڑی ہے۔ خان صاحب کی کال کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن آ کے پنجاب میں اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے، انشاءاللہ الیکشن کے فوراً بعد خان صاحب کال دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اوورسیز پاکستانی پہلے کی طرح اسی طرح نکلیں گے، اور پاکستان کی عوام اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ خان صاحب کال دے، اور انشاءاللہ اب پورے طریقے سے تجربے کے ساتھ ہم پاکستان اسلام آباد پہنچیں گے۔ تقریب کے میزبان جمیل شاہ نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت نے غریبوں کا جو حال کیا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئے ہیں۔ سید طارق محمود الحسن شاہ صاحب کو انوائٹ کیا تھا، آج اسپیشل گیسٹ ہیں میرے گھر پہ۔ تو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت، جو کہ امپورٹڈ حکومت نے جو ہے نا کہ جو چیزیں کی ہیں، مہنگائی کی طرف بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ سارا ادھر ہوا، اور شاہ صاحب کو ہم نے یقین دلایا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ سید مختوم حسین شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو اس ٹائم پہ کرنٹلی پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے خاص طور پہ، اور جو کرنٹلی جو ہماری سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہمیں بریف کیا، جو یہاں کے لوگ جتنے بھی آئے ہوئے تھے ان کو بریف کیا اور بتایا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے آج جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن اور آئندہ آنے والی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی کافی تفصیل سے یہاں پہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے۔ تقریب کے آخر میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن نے جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی برطانوی رکن پارلیمنٹ خالد محمود تھے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن نے ایک سیمینار کا انعقاد برطانوی پارلیمنٹ میں کیا، جس میں ممبر پارلیمنٹ خالد محمود کے علاوہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے تمام عہدیداران بھی موجود تھے۔ تقریب سے انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے صدر راشد اسلم، سیکریٹری جنرل شاہد ندیم سندھو، نائب صدر رانا ضیاء اسلم خان، نائب صدر بلال بابر، سعید احمد انفارمیشن سیکریٹری اور سیرت علی نے خطاب کیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان سمیت دیگر جنوبی ایشیائی ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی اور وہاں قانون کی بالادستی، شفافیت، احتسابی عمل، جمہوری اور اقتصادی نظام کی مضبوطی کو ضروری قرار دیتے ہوئے وکلاء کے کردار کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے پر زور دیا۔ سب سے ضروری جو ہے وہ رول آف لا، کسی گورنمنٹ میں، کسی ڈیموکریسی میں
अगर आप समझते हैं कि आपको डेमोक्रेसी चलानी है किसी मुल्क में, तो उसका रूल लॉ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जब रूल लॉ अकाउंटेबिलिटी और उसकी ट्रांसपेरेंसी जब नहीं होगी किसी की, तो वो वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो सबसे बेहतर ये है कि इंसानी हकूक़ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और हमें बड़ा फ़ख्र है आज के राजा खालिद महमूद साहब आए हैं यहाँ, जिन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया है कि रूल ऑफ लॉ को उसके साथ चलना कितनी ज़रूरी है, और एक अपना ओहदा छोड़ करके आगे जाने के लिए कि सबसे ज़रूरी ये है कि हमें जब भी गवर्नमेंट में हो या जिस बड़ी पोजीशन में हो, जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं लीड कर सकेंगे तो वहाँ कुछ नहीं रहेगा। इस हवाले से इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन ने अपने भरपूर किरदार और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के सद्देबाब के लिए होने वाले इक़दामात में अपने तावन का यकीन दिलाया। तकरीब में साबिका डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान राजा खालिद महमूद समेत नदीम तास, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ILA, काउंसलर डीना हुसैन, आयशा तनवीर मलिक, एलाम तनवीर मलिक, अमायमा आसिफ, नायाब आसिफ, अलीशा, हारिस अली, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद आसिफ मान ने तकरीब में शिरकत की। सलीम साबरी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, लंदन। जामिया इस्लामिया गौसिया के मोहतमे में आला काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने ल्यूटन बारो कौंसिल के टाउन हॉल में इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से सेमिनार का इनाकाद किया, जिसमें मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हर फर्द, इदारे और सियासी जमातों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत काम करने पर जोर दिया गया। देखते हैं ल्यूटन से हमारे नुमाइंदे चौधरी निसार गुलशन की ये रिपोर्ट। इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से ल्यूटन टाउन हॉल में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायम मकाम हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान हसन अली ज़ैगम, काउंसलर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद असद रशीद, फर्स्ट सेक्रेटरी कम्युनिटी वेलफेयर फैसल महमूद, लॉर्ड कुर्बान हुसैन, MP राजा यासीन, डिप्टी अपोजिशन लीडर काउंसलर मोहम्मद असलम के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि अगर मुल्की इदारे अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करें तो मुल्क में इस्तेहकाम लाया जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। जरूरत इस अमर की है कि तमाम सियासी जमातें, इदारे और अवाम जाती सियासी वाबस्तगियों और मफादात से बालातर होकर मुल्क की सालमियत के लिए सोचें और काम करें। अपनी मिली और कौमी बेदारी का मुजाहरा करते हुए हम अफवाज पाकिस्तान कौमी इदारों के शाना बशाना खड़े हैं और हमने पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है। शुरका का मजीद कहना था कि जिस जुर्रत और बहादुरी से अफवाज पाकिस्तान सरहदों पर काम कर रही हैं, इस पर हमें फख्र है। इसी तरह अदालतों और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करने की जरूरत है। शुरका का मौजूदा हालात पर कहना था कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो इदारों की दूसरे इदारों के काम में मुदाखलत का नतीजा है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान के हवाले से जो काम हुआ है, मेरा एक ही मैसेज है पाकिस्तानी ओवरसीज में बसने वालों के लिए कि पाकिस्तान की सलामती और उसके इस्तेहकाम के लिए ओवरसीज में रह करके मिलकर के पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज जो है उसको परवान चढ़ाया जाए और पाकिस्तान के अंदर होने वाली जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं लोगों के या और मामलात हैं, उनको वहाँ के 20-22 करोड़ आवाम के लिए रहने दें। इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन ल्यूटन में मुनक्कद हुआ है, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शमूलियत की है। हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में तमाम शुरका ने तजदीद अहद किया है कि पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं वो पाकिस्तान के आइन के अंदर काम करें और आवाम की खिदमत के लिए जो है अपनी जान लगा दें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आज के इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। ये बड़ा काबिल फ़ख्र इनिशिएटिव है पाकिस्तानी कम्युनिटी लूटन का। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हमारी कम्युनिटी के जो अकाबरीन हैं उनको कि उन्होंने इस अहम मौजू के ऊपर कम्युनिटी को इकट्ठा किया। इस बात पे मुझे दिली खुशी हुई कि दयारे गैर में रह के जो जज्बा आपका पाकिस्तान के हवाले से है, पाकिस्तान के हवाले से जो कंसर्न शो किया जाता है, अगर पाकिस्तान में कोई कमज़ोरी या पाकिस्तान में उसे नाताकत बनाने की कोशिश कहीं पे भी हुई, उसके हवाले से जो परेशानी और जो कंसर्न यहाँ पे शो किया गया
वो मैं समझता हूँ कि वही जज्बा पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानियों में मौजूद है, उसी तरह का जज्बा मैंने यहाँ पे देखा। यही हमने पैगाम अपनी लोगों को अपनी यंग जनरेशन्स को देना है कि देखें, अपनी एनालाइज करें, अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को, उन डिसिप्लिन को कायम करें जो हमारे बुजुर्ग ने काम किया था। इज़्ज़त करना, इज़्ज़त देना, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर इंस्टीट्यूशंस, रिस्पेक्ट योर कंट्रीज दैट यू लिव इन। आखिर में बरतानिया और पाकिस्तान के तराने बजाए गए, हाजरीन ने एहतरामन खड़े होकर तराने सुने और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआएं भी की गईं। चौधरी निसार गुलशन, 92 न्यूज़, ल्यूटन। 8वीं ब्रेडफुट लिटरेचर फेस्टिवल में इंटरनेशनल मुशायरा और गज़ल की रंगारंग महफिल का इनेकाद किया गया। कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर और ब्रेडफुट के कौंसल जनरल तारिक वज़ीर और इब्रार हुसैन खान के अलावा शायरी से शगाफ रखने वाली ख़वातीन और हज़रात ने भी भरपूर तादाद में शिरकत की। तफसीलात वक़ार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से नासरा ज़ुबैरी और खालिदा उज़्मा, अमरीका से खालिद इरफान, फ्रांस से समन शाह और जर्मनी से आतिफ तौकीर के अलावा बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से शुअरा और शायरात ने महफिल मुशायरा में हिस्सा लिया और अपने खूबसूरत कलाम पेश करते हुए हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। जुस्तजू करने लगा है एक मुकम्मल अक्स की, आईना दिल का कई टुकड़ों में बट जाने के बाद, और एक तज़ब्ज़ुब के सफर में था किसी का फैसला, एक तज़ब्ज़ुब के सफर में था किसी का फैसला, लौट आना चाहता था वो पलट जाने के बाद। मुंतज़मीन, हाज़रीन और मेहमानों का कहना था कि ऐसी अदबी महफिल का इनकाद अदब की तरवीज और सकाफत की तशहीर के लिए बहुत ज़रूरी है। नई नस्ल को अपनी इक़दार से जोड़े रखने के लिए इन महफिल का बाकायदा एहतमाम किया जाना चाहिए। ज़बरदस्त मुशायरा मैनचेस्टर और ग्रेटर मैनचेस्टर के तमाम इलाकों में मुशायरे होते रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, लेकिन आज यहाँ इस मुशायरे को देख के मैं बहुत खुश हूँ। 11 बज रहे हैं और अभी तक मैं खुद भी मौजूद हूँ। CG ब्रैडफोर्ड इज़ हियर एज़ वेल और बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा इंतज़ाम मुशायरे का, सबसे पहले तो इंतज़ाम को मुबारकबाद। इसके अलावा जो शुअरा ने जो अपने कलाम पेश किए, जो अपने ख़यालात पेश किए, वो बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया। बड़ी दिलचस्पी से, इनामात से लोगों ने मुशायरे को सुना। उमूमन मैं अक्सर मुशायरों में शिरकत करता हूँ, अमेरिका में, पाकिस्तान में, लेकिन आखिर तक लोग उठ के चले जाते थे। और मैं बीच में ये बात कह रहा था कि मुशायरा, आज का मुशायरा खुसूसन हमारी जो मुशायरे की तहजीबी रवायात हैं उनको बिल्कुल उनके बहुत ज़्यादा करीब था। यहाँ पर जो पाकिस्तानी अवाम है तो वो पाकिस्तानी, और जो ओरिजिन उनका बेसिकली है वो तो पाकिस्तान है, और वो माशाल्लाह पाकिस्तान से बेपनाह प्यार करती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सारे लोग कहते हैं, जिस तरह मेरी बड़ी इंटरेक्शन है, मैं बहुत सारे मुल्कों में जाता हूँ, तो हमारा प्राउड है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उनका रिस्पांस वैसे ही होता है जैसे पाकिस्तान में हमें वहाँ पर रिस्पांस मिलता है। देखिए, मुशायरा कहीं भी होता है, वो एक तो सबसे पहले सामे और शायर के बीच एक पुल का नाम है, और उमूमन मुशायरा एक तरफ तो शायर और उसके सामे को या उसके कारी को आपस में मिलाता है, लेकिन साथ ही साथ तरबियत का भी एक सामान मुहैया करता है। बैरून मुल्क अपनी सकाफत, अपने रंग और तमद्दुन से दूर लोगों के लिए मुशायरा एक उम्दा तदरीस का है, एक तरबियत का है। और लोग हमारी तवक्को से ज़्यादा बढ़कर आए, सोल्ड आउट था। मेरे ख्याल में पेंडेमिक के बाद जो भी खुला है तमाम ये तकारीब का सिलसिला, तो लोग तरसे हुए थे और वो आ रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि कितने तादाद में लोग आए और उन्होंने एंजॉय किया। शायरी कार हुनर है, शायरी खून जिगर है, और मुशायरे हमारी तहजीब की अक्कासी करते हैं। और आज BLF के साथ हमने जुड़कर यॉर्कशायर अदबी फोरम ने एक मुशायरे का इनेकाद किया है, जो तहजीब और रिवायत का आपने मुजाहिरा देखा ही होगा। यहाँ पर ब्रैडफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल का ये 8th एनुअल फेस्टिवल है जो इस साल अभी आज शुरू हुआ है। मुझे बहुत फ़ख्र है कि ब्रैडफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल ब्रैडफोर्ड का एक और यॉर्कशायर और एक्चुअली नेशनल जो UK का कल्चर सीन है उसका एक अहम हिस्सा है। बहुत अच्छा लगा है और लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी लगी है। महसूस हुआ है कि लोग कमी महसूस कर रहे थे इस चीज़ की, और अदबी महफ़िलें होनी चाहिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और माशरे में लोगों के लिए एक खुशी और एक तफरीह का बाइस भी बनता है। बहुत ही कामयाब मुशायरा हुआ, बहुत खूबसूरत, और इतनी अच्छी मयारी शायरी सुनने को मिली। और उसके साथ साथ मैंने ज़ौक़ देखा कि वो आखिर तक बैठे हुए हैं, कोई उठ के नहीं जा रहा। वरना बाज़ जगहों पे हम देखते हैं कि
चंद अपने पसंद के शायरों को सुना और उसके बाद चले गए। पाकिस्तान के मायनाज गुलकार रफाकत अली खान ने अपने मखसूस अंदाज और मुनफरिद गायकी से शायकीन को खूब महसूस किया। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारान से राब्ते कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिक गवर्नर पंजाब और GOC के बानी चौधरी मोहम्मद सरवर ने ग्लासगो में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए किया। जी शाहिद, बताइएगा कि यासीन मलिक की रिहाई के हवाले से चौधरी सरवर का मजीद क्या कहना था? जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबका गवर्नर पंजाब और ग्रैंड ओवरसीज क्लब के बानी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, जो कि ग्लासगो में अपने खुसूसी दौरे पे आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं जो यासीन मलिक की रिहाई के हवाले से चौधरी साहब ने जो आजकल वो मुख्तलिफ सियासी पार्टी को इकट्ठा किया हुआ है और उसकी अपील को आलमी सतह पे ये उजागर कर रहे हैं। इस हवाले से मैं बात करूँ, मैं पहले यूएई में भी गया था, दूसरे मुल्कों में भी गया हूँ और बरतानिया में आया हूँ। यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनसे भी बातचीत हो रही है, स्कॉटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी बात हो रही है और मेंबर से बात हो रही है। तो एक तो पहली बात ये है कि हम एक अवेयरनेस कंप्लेन कर रहे हैं कि यासीन मलिक कौन है। वो एक फ्रीडम फाइटर है, कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है और उस पर झूठे मुकदमा बना के उसको 2 लाइफ सेंटेंस दिए गए हैं। एक कैंगरू कोर्ट थी जिसने ये फैसला किया है। उसकी रिहाई के लिए हम अपनी पूरी इंशाल्लाह कुव्वत के साथ बैनुल-अक़वामी आवाज़ उठाएंगे। और एक बड़ी ये मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान की मजहबी जमातें कश्मीर के हवाले से, यासीन मलिक के हवाले से और जितने भी वहाँ पर फ्रीडम फाइटर वहाँ पर गिरफ्तार हैं उनके हवाले से पूरी कौम, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। और अपील के सिलसिले में भी मुशावरत जारी है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए भी क्या हो सकता है, क्या बैकग्राउंड चाहिए, लीगल इम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो ये सारी ऑप्शन जो हैं इंशाल्लाह पूरी हमारी जो टीम है ऑल पार्टी टास्क फोर्स वो इस पर गौर भी कर रही है और इंशाल्लाह इस पर। तो इस सिलसिले में क्योंकि आपके दोस्त इंडिया में भी मौजूद हैं तो आपने कोई उनसे रब्ता किया है कि वो कोई इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, मैंने जो इंडिया में जो हमारे लोग वाकिफ हैं या ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं उनसे भी राब्ते में हैं। जी, चौधरी साहब का यही कहना था कि यासीन मलिक जो है वो बरे-सगीर पाको इनका नेल्सन मंडेला और इंशाल्लाह ताला वो रहा होगा। जी, पाक नॉर्वे फोरम के ज़ेरे तमाम ओस्लो में इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इत्माम किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं समेत ख़वातीन व हज़रात, कम्युनिटी रहनुमा और सफ़ीर पाकिस्तान नॉर्वे बाबर अमीन और दिगर ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल डॉक्टर कामरान की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान हम आहंगी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने और मुसल्लह अफ़वाज के साथ इजहार यकजहती के लिए नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में पाक नॉर्वे फोरम की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी लॉर्ड वाजिद खान, सफ़ीर पाकिस्तान नॉर्वे बाबर अमीन, पाक नॉर्वे फोरम के सदर चौधरी कमर अब्बास टिवाणा, MP मुदस्सर कपूर, साबिक MP खालिद महमूद, सिटी काउंसलर नासिर अहमद, परवेज इकबाल, मुअज़्ज़िज़ीन नॉर्वे, सियासी और मजहबी शख्सियात, कम्युनिटी रहनुमाओं बशमूल ख़वातीन और बच्चों की कसीर ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी लॉर्ड वाजिद खान और सफ़ीर पाकिस्तान नॉर्वे बाबर अमीन, MP मुदस्सर कपूर, साबिक MP खालिद महमूद, सिटी काउंसलर नासिर अहमद, परवेज इकबाल और दीगर मुमताज मुकर्ररीन ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज वतन अजीज अनगिनत मसाइल से दोचार और बेशुमार मसाइब व मुश्किलात का शिकार है। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि दाखिली मामलात हों या खारजी मसाइल, हर सिमत से मुल्क को नए चैलेंजेस का सामना है। ऐसी सूरत हाल में अमन अमान और मुल्की इस्तेहकाम हमारे फौरी गौर व फिक्र और मुस्बत और तामीरी इक़दामात का मुतकाज़ी है। आज दुनिया में कामयाब हैं और आगे हैं, उन पे बहुत सारी और बातों के साथ ये एक बहुत अहम एट्रीब्यूट है उनका कि वो नेशनल इंटरेस्ट को फंस सकते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिन्होंने बोर्डर पैरल में 80,000 लोगों से ज्यादा शहीद हो गए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डैमेज टू द इकोनॉमी। ये पाकिस्तान की जंग नहीं थी, दिस वाज अ कोलिशन, दिस वाज सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर किसी फौज ने, किसी कौम ने, किसी मुल्क ने किसी हालत डिप्टी जासूस स्पाई को पकड़ा है वो फौज पाकिस्तान है। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के अवाम के माथे का झुमर है, सर का ताज है और दुनिया की कोई ताकत अवाम और अफवाज में अफवाज के इस बेमिसाल मिशन में दरार नहीं डाल सकती।
हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपने मुल्क और उसके दिफाई इदारों को मुस्तहकम और मजबूत देखना चाहता है, और हम दिफाई पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वालों को सलाम पेश करते हैं और अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। डॉक्टर कामरान, 92 न्यूज़। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद दुनिया भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। ऐसी ही एक पुरनूर महफिल मिलाद स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुनक्किद हुई, जिसमें दरूद व सलाम के नजराने मोहब्बत और अकीदत से पेश किए गए। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। आकाए दो जहां सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के हवाले से महाफिल का इनेकाद आशिकान रसूल के ईमान का लाजमी जुज़्व है, जिसे आका के गुलाम बड़ी अकीदत व मोहब्बत और बड़े करीने से सजाते हैं। ऐसी ही एक मिलाद कॉन्फ्रेंस बार्सिलोना में साहिल समंदर के करीब खूबसूरत कुर्तबा हाल पोर्ट फोरम पे इनेकाद पजीर हुई, जिसमें पाकिस्तान से आए मारूफ कारी और नात खान शाहिद महमूद ने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अकीदत व मोहब्बत के नजराने पेश किए। मौला अली की शान में खूबसूरत मनकबत पेश की और माँ और बाप की मोहब्बत में अकीदत भरे अशार अपनी पुरसोज आवाज में यूं पेश किए कि महफिल झूम उठी। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली कमली वाले के जिक्र पे झूमते और दरूद व सलाम के नजराने पेश करते रहे और कारी शाहिद महमूद को हाथ लहराकर दादो तहसीन भी पेश करते रहे। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सुलेमान बाबर बेग, साबका वेलफेयर अताशी मोहम्मद असलम गौरी, सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियात और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलों को मुनव्वर करते रहे। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सुलेमान बाबर बेग ने महफिल से खिताब करते हुए कहा कि दीन के तमाम रास्ते मोहब्बत से होकर गुजरते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए आगे आसानियों के मामलात फरमाएं और हम सब के वालिदैन जो हयात हैं उनकी हयात में बरकत दें और जो जा चुके हैं उनकी आगे आसानियों के फजल के करम के मामलात फरमाएं। बेल्जियम से आए अलामा सैयद हसनात शाह बुखारी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बयान करते हुए खवातीन हजरात से कहा कि आप अगर बरकतें चाहते हैं, रहमतें चाहते हैं, इज्जतें चाहते हैं तो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा लें। अल्लाह पाक सारी मुश्किलात आसान फरमा देगा। अपनी जिंदगी में इसमें मोहम्मद को शामिल करें। अगर आप बरकतें चाहते हैं, रहमतें चाहते हैं, दुनियावी उखरवी इज्जतें चाहते हैं, अल्लाह के मकबूल बारगाह बंदे बनना चाहते हैं तो नाम मोहम्मद को सीने से लगा लें। अल्लाह पाक सारी मुश्किलात को आसान फरमा देगा। इस पुरनूर महफिल मिलाद में कुरानदाजी के जरिए दो खुशनसीबों, एक मर्द और एक खातून को उम्रे की टिकट चौधरी हमीद ताहिर और मोहम्मद यासिर की जानिब से दी गई। माशाल्लाह ये हमारी बहन है, उसका नाम है लुबना सईद, हमारी बहन लुबना सईद। अच्छा ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जबकि तकरीब के मुंतजिम चौधरी इम्तियाज आकिया के वालिद के रूह के इसाले सवाब के साथ साथ मुल्क की सलामती, तरक्की, इस्तेकाम और इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं की जाती रहीं। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ पाकिस्तानी खानों से की गई। इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ का है और मैं यहाँ पे पूरी कम्युनिटी को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, अखुवत का पैगाम देता हूँ, इत्तिहाद और इत्तिफाक का पैगाम देता हूँ और यही कहता हूँ कि इस तरह की महाफिल के जरिए इकट्ठा हो। पूरे यूरोप में इस तरह के प्रोग्राम का इनकाद होना चाहिए और आज बार्सिलोना में तो कमाल हो गया और मैं समझता हूँ और मेरा यकीन भी है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम इकट्ठे हो सकते हैं, वरना एक दूसरे से हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं। जो ख़ास प्रोग्राम की बात थी, यहाँ बहुत सारे बच्चों की तादाद, ख़वातीन की तादाद जो है उसने इस महफिल को चार चांद लगा दिए हैं, क्योंकि ये असल पैगाम है जो हमने अपने बच्चों तक, अपने आने वाली नस्ल तक पहुँचाना है। बार्सिलोना के अंदर भी मोहम्मद के ग़ुलामों ने मोहम्मद के नाम की महफिल सजाई है और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मैम अरीसा का और इनके वालिदैन का और खुसूसन पूरी टीम का कि जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये प्रोग्राम सजाया। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, रिलीजियस इवेंट, बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत फरमाई है और मुझे बड़ी खुशी है कि एक कॉल पे हमारी इतनी सारी ख़वातीन तशरीफ़ लाई हैं और हमें इज़्ज़त बख्शी है। जी, आज बार्सिलोना में यहाँ पर एक महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें कारी शाहिद महमूद साहब ने ख़ास तौर पर यहाँ पे शिरकत की और बहुत ही शानदार ये तकरीब हुई। इसमें ख़वातीन ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है। पाकिस्तान में इवेंट्स बहुत देखे थे, मिलाद होते नात, लेकिन बार्सिलोना में फ़र्स्ट टाइम देखे
और बिल्कुल नहीं लगा कि हम बाहर हैं, ऐसा लगा जैसे हम पाकिस्तान में ही हैं। तकरीब में आए शुरका मुंतज़िमीन को कामयाब और शानदार मीलाद कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करते रहे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। नीदरलैंड के शहर दी हैग में सफारत खाना पाकिस्तान ने हंटिंग क्रिंक बिजनेस क्लब और अर्फ के ताउन से पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के मौके के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 के करीब कारोबारी अफराद ने शिरकत की है। मज़ीद अहवाल डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। नीदरलैंड के शहर दी हेग में सफारत खाना पाकिस्तान में हंटन क्रिंग बिजनेस क्लब ऑल्फिट के ताउन से पाकिस्तान में तजारत और सरमायाकारी के मौके के मौजू पर एक सेमिनार हुआ, जिसमें 100 के करीब कारोबारी अफराद ने शिरकत की। क्लब के सरबराह जराइन गेजनार ने शुरका का खैर मकदम किया। डॉन टर्किंग हॉलैंड के मालिक मिस्टर डॉन डी योंग, जो पहले से पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सेक्टर में अपनी कंपनी की कामयाबी की कहानी सुनाई। मिस्टर थॉमस कोलमैन, जो मिस्टर डॉन के साथ एक IT कंपनी नो नेम के शराकतदार हैं, इनका कहना था कि नो नेम भी पाकिस्तान से खिदमत हासिल कर रही हैं। दोनों कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी माहौल को सराहा। We really hope that people will visit Pakistan because of that, and that they will experience the same as what we experience with our business, and see the opportunities Pakistan has together with our partners in Pakistan, AK Transport and software developers. We have a lot of experience, and we see that the market is ready for interactive and for business and for good cooperation. We had a very successful event here in Ulf, showcasing what we can do with business in Pakistan. I myself am Thomas Collins, Managing Director of the No Name Group. We are a Dutch and Pakistan-based company where we build the most amazing software for our clients worldwide with all of the developers and experience in Pakistan. कमर्शियल काउंसलर रिजवानुल हक ने ऑल्फिट में डिच कंपनियों के लिए पाकिस्तान में तजारत और सरमायाकारी के मौके के बारे में बताया। पाकिस्तान में ज़री शोबे में इम्कानात और टेक्सपो 2022 का चौथा एडिशन 18 से 20 अगस्त 2022 को कराची में मुनक्कद होने के बारे में प्रेजेंटेशन दी। इस तरह पाकिस्तान टेक्सटाइल मसनूआत का एक सरकर्दा सनतकार और बरामद कनिंदा है। हॉलैंड में मुकीम मुतअद्दिद कंपनियां पाकिस्तान से खरीदारी पर इन्हिसार करती हैं। आने वाला टेक्सपो पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में नए कारोबारी इम्कानात की तलाश करने के मौके फराहम करता है। इस मौका पर सफारत खाने ने पाकिस्तान की ज़राअत और टूरिज़्म पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई। आखिर में मेहमानों की तवज़्ज़ो पाकिस्तानी खानों से की गई। डॉक्टर कामरान, दी हेग, नीदरलैंड। ऑस्ट्रिया का शहर वियना एक बार फिर दुनिया का सबसे काबिल रिहायशी शहर है। इस बात की तस्दीक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने अपनी शाया करदा रिपोर्ट में की है। यह मैगजीन अपनी रिपोर्ट में हर साल सेहत की देखभाल, तालीम, सकाफत, समाजी तहफ़्फ़ुज़, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, सियासी इस्तेहकाम, बुनियादी और जराइम का 140 शहरों का मवाजना करता है। मज़ीद तफ़सीलात अकरम बाजवा की रिपोर्ट में। ऑस्ट्रिया का शहर वियना एक बार फिर दुनिया का सबसे बेहतरीन रहायशी शहर करार ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने अपनी शाया करदा रिपोर्ट में तस्दीक की है। वियना के मेयर माइकल लेडॉग ने दुनिया में वियना का नंबर 1 आने पर कौम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल सताइश रहायश शहर वियना की इस हैसियत को बरकरार रखना हमारा फर्ज है। मेयर माइकल लेडॉग ने मजीद कहा कि सेहत के निज़ाम को अरबों की सरमायाकारी से बढ़ाया जा रहा है। सोशल हाउसिंग से मुतल्लिक मौजूदा बैनुल-अक़वामी हाउसिंग नुमाइश से पता चलता है कि जब सस्ती रिहाइश की बात आती है तो वियना एक रोल मॉडल है। यहाँ हम अपने एजाज पर आराम नहीं करते बल्कि मुसलसल ने जिंदा रहने मॉडल पर काम करते हैं। I want to tell you that Vienna is now the first city in living on a place of in the world, and this makes me proud. And I would be happy when Pakistan would have also a city like Vienna to have in 10th place or so in the world. मुझे बड़ी फख्र से कहता हूँ कि मैं दुनिया की उस शहर में रहता हूँ जो इस वक्त खूबसूरत तरीन जगह करार दी गई है, और इसमें मेरा अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि मैं यहाँ आया, यहाँ 44 साल से मुकीम हूँ और हर तरह की सहूलत महसूस है। इनका मजीद कहना था कि हमारे शहर का अच्छा अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ इसे कारोबारी मकाम के तौर पर पुरकशिश बनाता है, जिसके नतीजे में लेबर मार्केट और रोज़गार पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया।
नॉर्वे के मशहूर इस्लामी स्कॉलर अलामा मुफ्ती मोहम्मद जुबैर तबस्सुम का वियना का दौरा और मस्जिद अल मदीना में नमाज जुमा पढ़ाया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात अकरम बाजवा की इस रिपोर्ट में। वियना में नॉर्वे के मशहूर इस्लामी स्कॉलर अलकरम फ्रेंड्स यूरोप के जनरल सेक्रेटरी अलामा मुफ्ती मोहम्मद जुबैर तबस्सुम का वियना का एक रोज़ा दौरा पर हैं। इन्होंने दारुल मुस्तफ़ा सेंटर वियना और मस्जिद अल मदीना वियना का विजिट भी किया। अलामा मुफ्ती मोहम्मद जुबैर तबस्सुम ने नमाज जुमा मस्जिद अल मदीना में पढ़ाया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। अलामा मुफ्ती मोहम्मद जुबैर तबस्सुम ने नमाज जुमा के खिताब में कहा कि खुदा फरमाते हैं कि जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, जहाँ मेरी सनाख्वानी होगी वहीं आका की नातख्वानी होगी, जहाँ मेरी याद होगी वहाँ तेरी याद होगी, और आका की सनाख्वानी असल इबादत है। रब्बुल आलमीन का पूरा कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलदस्ता है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक ये नाते मुस्तफा का हसीन गुलदस्ता है। कहीं सरकार के चेहरे का, कहीं सरकार के जुदुल्ला वाले हाथों का जिक्र, और कहीं फरमाया वस्बिर लिहुक्मी फइन्नका बिअअयुनिना, माबूद तू हमारी कुदरत की निगाहों में बसता। अलामा मोहम्मद जुबैर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियां देकर हासिल किया है, इसकी हम हिफाजत करेंगे और वतन पाकिस्तान अल्लाह पाक का एक इनाम है और ये वाहिद मुल्क है जो कलमा तैयबा के नाम पर बना था, और ये वक्त का तकाजा है कि पूरी कौम अपने इख्तलाफात बुलाकर यकजान होकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालें। ये दौर बिलखुसूस आलियाने पाकिस्तान के लिए बड़ा सब्र आजमा और बड़ा ही मुश्किल है। ऐसे आलम में वतन की खिदमत करना, उसकी नज़रियात की, उसकी जुराखाई सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी सारी कोशिशें बुए कार लाना, ये बहुत बड़ा एक जिहाद है। और हम तो ये कहते हैं कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। शर्क़ से लेकर गर्ब तक वतन अजीज़ पाकिस्तान के वासियों से जो जहाँ कहीं भी बस रहा है, मैं उसे ये कहूँगा कि वतन के साथ मोहब्बत इस वक्त तकाजा इस बात का कि जो खित्ता पाक हमारे बुजुर्गों ने इस कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बनाया था, अब उसकी तामीर और तरक्की के लिए पूरी कौम को हर तरह के इख्तलाफात को पसे कुछ डालकर यकजान होकर उसका मकाम भी, उसका मर्तबा भी, उसकी मईशत भी और उसकी नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है।